Hello, guys. Welcome to another episode of Think Like an Auditor. And as you know, that we are doing a series of Think Like an Auditor, and the topic today is audit of statutory dues. And also, if you see, there is some change in the picture which I'm displaying you right now, and I'm super happy about this, which I wanted to share with you. कि ये जो थंबनेल आप जो देख रहे हो, ये काफी मेरा प्रीवियस ट्रेंड से बहुत जो बोरिंग टाइप का होता है उससे काफी डिफरेंट है. एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन, रोशन, हु हैज डन दिस फॉर अस. मतलब तो फाइनली द ऑब्जेक्टिव कि ऑडिट प्रैक्टिकली इज अ टीम एफर्ट इज कमिंग नाउ. सो रोशन इज लाइक समवन लाइक यू गाइस हु हैज done this for us. He messaged me that if you're interested and everything, I can help you on this. He understood that I'm very poor on these thumbnails, and he has helped me on this, and I'm super happy about it because हम जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड कि यार ये चीज मतलब इट्स अ टीम एफर्ट, एंड हम लोग साथ है तो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो अलग अलग फिर बिखर जाएंगे. सो he has started that contribution, and as I've always requested in other videos also, that you guys also need to contribute by whatever means. You can give some seminars, some lectures, or whatever, what you are learning, what you are sharing, any good thing which you are learning, so you can do that. Okay. So we are going to cover audit of statutory dues today. Okay. Before I begin, I will just like to introduce you to our channel, which is named as Audit Practically, and our YouTube channel. So यहाँ पर आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे. इफ यू आर समवन बिगिनर, यू शुड स्टार्ट विद कैश एंड बैंक. ओके. And if you are pro, then you should surely watch the 7 parts of debtors. Okay. Undoubtedly it will be a major value addition in your knowledge, so do watch the 7 parts of debtors. Okay, it will take some time, but I'm sure it will be beneficial to you. Okay. Apart from this, there is also a playlist named as Gyan Ki Baatein. So there are two videos right now there. One is that how to choose your articleship firm, so do watch if you have someone who has not started your articleship firm, articleship. And the second one is like, if you haven't cleared group 2 and you're in a dilemma whether to pursue your articleship, or whether to start your articleship or not, then you should watch this video. Okay. Now coming to today's topic and agenda, which is audit of statutory dues. So without wasting time, let me show you the financials today. So आज we have picked HUL का financials, ठीक है. और supposedly HUL का financials में यहाँ पर other current liabilities में आता है the statutory dues. Okay. So other current liabilities is note number 22. If you go to the note number 22, I have taken a snapshot of this. ऐसा दिखता है statutory dues including provident fund, tax. So it will be current obviously, because statutory dues हम लोग को within 1 year, maximum 1 month के अंदर पे करना पड़ता है. So provident fund, tax deducted source and others, ठीक है. और यहाँ पर फिगर आ रहा है 474 crores, ठीक है. बट फॉरगेट द 474 crores फॉर नाउ, ठीक है ना. आप इमेजिन करके रखो ये फिगर ना 18 lakhs है, बिकॉज आई हैव मेड द ट्रायल लाइक दैट. मैंने अपने हाथ से सब ट्रायल वाले बनाए, और इस 18 lakhs है. फिगर्स आप भूल जाओ. अभी आपको ये 18 lakhs दिख रहा है सपोजली फाइनेंशियल्स में, आपको ऑडिट करना शुरू करना है. यू हैव टू स्टार्ट द ऑडिट राइट नाउ. सो आप कैसे करोगे ऑडिट? सो फर्स्ट थिंग, वी हैव ऑलवेज नोन कि हम पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेस करेंगे फिगर. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ आ रहा है ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज बोल रहा है, ये क्या एक जीएल से आ रहा है कि या मल्टीपल जीएल से आ रहा है? इन माय केस ऑब्वियसली ये एक जीएल से नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जहां पर है तो प्रोविडेंट फंड का जीएल होगा, टीडीएस का जीएल है तो टीडीएस का एक 194 सी का जीएल होगा, 194 जे का जीएल होगा, 194 आई का जीएल होगा. उसी तरह जीएसटी है. सो बहुत सारा चीजें हैं, तो बहुत सारा मल्टीपल जीएल्स उठ के ये फिगर आ रहा होगा. सो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही है. तो 18 lakhs, ये 4-5 कुछ एडमिन चार्जेस का जीएल है, पीएफ का जीएल है. आपको पता है पीएफ में एक एडमिन चार्जेस होता है, डीएलआई होता है. तो बहुत सारा जीएल है और उसको फिगर मिला के 18 lakhs आ रहा है. एंड दिस फिगर इज कमिंग फ्रॉम द ट्रायल. तो अब याद रखना, आप जब आपको जब ऑडिट में फाइनेंशियल्स मिलता है ना, तो पूरा ये चीज ऐसे एक्सेल में मिलेगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली आपको एक एक्सेल में मिलेगा. आप नोट नंबर 22 में ये फिगर में क्लिक करोगे तो ये आपको फिर ये अदर करंट लाइबिलिटीज में एक एक्सेल में लेके चला जाएगा. आप जैसे यहाँ पर 474 की जगह भी मान के चलो 18 में क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर फिगर लेके आएगा, और आपको ब्रेकअप मिलेगा किसका है. तो आपका ट्रायल के मतलब कि
आपका फेस ऑफ द फाइनेंशियल्स एक ट्रायल के साथ पूरा लिंक रहता है। एक मैक्सिमम अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जब आपको फाइनेंशियल्स मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो आपने ट्रायल में फिगर मैच कर लिया, तो फर्स्ट थिंग ऐसे वी नो दैट वी शुड फर्स्ट ट्रेस इट विद ट्रायल। द सेकंड स्टेप व्हाट वी डू इज दैट we check whether the same figure is coming in the ledger or not. Now I have made multiple videos on this. I just want you to pause for a second, pause this video for a second, write down in the comment section that why are we checking the same thing in the ledger? Because ट्रायल में जो फिगर आता है, हम लोग क्या फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स तो बनाए हैं, तो लेजर्स का ही फिगर तो क्लोजिंग बैलेंस, लेजर का ही क्लोजिंग बैलेंस तो ट्रायल में आता है, तो फिर लेजर को क्यों चेक कर रहे हैं वापस से? व्हाई आर वी डूइंग दिस स्टूपिड थिंग? ठीक है, आई वांट टू आंसर यू दिस right now. I will answer now, so you pause this video and answer. Okay, so basically क्या होता है, so अब जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल्स को ट्रायल के साथ लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी सपोजली ये जो अकाउंटेंट जो बनाया था वो 15 अप्रैल को बनाया था, सपोजली 15 अप्रैल में वो बनाया था, बट आप तो हर एरिया का ऑडिट 15 अप्रैल को नहीं करोगे। आप मे बी 15 अप्रैल को मे बी आए नहीं ऑडिट करने, आपने 16 अप्रैल को आया या 20th आया, या लेकिन जो भी हो आपने सपोजली इस एरिया, ये जो एरिया पकड़ा ऑडिट का स्टैट्यूटरी ड्यूज चेक करना है, सपोजली 25 अप्रैल पकड़ा, तो उस समय आपको यही वाला दिया रहेगा। ऑब्वियसली जब सो आप स्टार्ट कर दिए तो ऑडिट 15 अप्रैल को, बट स्टैट्यूटरी ड्यूज जो एरिया कोई कैश एंड बैंक देख रहा था, कुछ देख रहा था, जो भी देख रहा था, तो 25 को स्टैट्यूटरी ड्यूज कोई इंसान कोई आर्टिकल लेके पकड़ा और करना शुरू किया। सो उस समय तक मे भी हो सकता है कि लेजर में कोई बैकडेटेड में एंट्रीज मार दिया हो, तो फिगर्स चेंज हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जो फिगर आपका जो भी वर्किंग्स बना के दे रहा है क्लाइंट या कुछ भी करके दे रहा है, जो भी फिगर्स आपका नंबर्स ऊपर जा रहा है, उसको आप पहले लेजर से देख लो, लेजर्स के साथ मैच कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज लेजर के साथ मैच। अभी हम लोग देखेंगे, अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो फर्स्ट वी विल डू टीडीएस का कैसे चेकिंग करते हैं, सेकंड वी विल डू पीएफ चालान्स एंड एवरीथिंग, एंड थर्ड वी विल डू जीएसटी। ओके, तो एंड आई विल टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टुडे। ओके, क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं। ओके, दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई हैव लर्नड एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब बहुत जन नहीं करते हैं, ठीक है। सो टीडीएस का जीएल में जैसे मेरे को दिख रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000 है। अब 2,10,000 सपोजली मैंने ये लेजर खोला, अभी मैं कुछ नहीं किया, बस मैंने लेजर को रन किया, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखा, और लेजर का क्लोजिंग बैलेंस में भी दिख रहा है दिस इज द लेजर। ओके, एसएपी से निकलता है, देयर आर वीडियोस। ओके, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट लेजर फ्रॉम एसएपी? ट्रायल में टैली से तो आप निकाल ही लोगे। सो 2,10,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, माय फर्स्ट वर्क इज डन। ओके, दैट द फिगर्स आर मैचिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट नाउ अब क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस मैच करें, बट एज ऑन 31 मार्च 2,10,000 वहां भी दिख रहा है, 2,10,000 ट्रायल में दिख रहा है, एंड फाइनेंशियल्स के फेस में भी 2,10,000 जा रहा है। तो फर्स्ट चेकिंग इज डन, बट दिस आई ओनली चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट मैंने इसको कुछ सपोर्ट से, कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से अपना चीज को ये नहीं कराया, मतलब फिगर्स को सब्सटेंशिएट नहीं कराया। सो आई हैव टू टेक सम मोर एश्योरेंस ऑन दिस फिगर कि ये इतना ही तो टीडीएस का लाइबिलिटी, इससे ज्यादा तो नहीं है। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग आई कैन डू? आई कैन, अभी हमको पता है कि टीडीएस 30 अप्रैल तक डिपॉजिट हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, नॉर्मली 7th तक होता है और 30 अप्रैल तक हो जाता है। तो आई कैन आस्क फॉर द कि अरे 2,10,000 आपका तो चालान दिख रहा है, अब आपने तो पेमेंट किया है, मतलब आपने तो पेमेंट किया ही होगा, तो एक बार दिखा दीजिए मेरे को अपने गवर्नमेंट को, तो मेरा फिगर थोड़ा और सब्सटेंशिएट हो जाता है कि 2,10,000 पे हुआ है। सो व्हाट आई कैन आस्क इज चालान। तो चालान समवेयर लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ठीक है। टैक्स पेयर्स, इधर टैन नंबर रहेगा, रिसीव्ड किस पार्टी से रिसीव हुआ है, कुछ सिन विन नंबर रहेगा, डेट ऑफ चालान किस दिन ये है, एंड कितना पेमेंट हुआ। जस्ट फॉरगेट द नंबर। ओके, दिस इज जस्ट अ डमी चालान। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सेक्शन भी दिखता है 194C किस असेसमेंट ईयर का दे रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ आई सब्सटेंशिएटेड दैट, हाँ ठीक है, 2,10,000 रुपया जो मेरे कुछ लेजर में दिख रहा था, 2,10,000 रुपया, दैट द कंपनी हैज deposited, and now I am having a little more reasonable assurance on this figure. But there is a but. ये फिगर मेरे को क्लोजिंग और मेरे को ट्रायल का ये क्लोजिंग बैलेंस का फिगर में एक थोड़ा सा ग्रिप मिला, ठीक है, बट यहां पर मेरा काम खत्म नहीं होता है। What I did is just I just check the closing balance, और क्लोजिंग बैलेंस से मेरे को तो ग्रिप मिला। बट अगर आपको याद हो और आपने कभी कारो पढ़ा है, तो कारो में एक पॉइंट आता है कि कंपनी रेगुलरली अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं। दिस इज द पॉइंट, आई कैन शो यू इट इन द एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो, पेज नंबर। कभी कभी बोर्ड होना कारो वारो पढ़ने में, तो एनुअल रिपोर्ट से ही कारो पढ़ लेना, उसी से यहाँ पर आया पॉइंट नंबर 7,
according to the information given to us, in our opinion, the company is regularly depositing undisputed statutory dues. Okay, और 6 मंथ से ज्यादा कोई अनडिस्प्यूटेड एरियर में नहीं है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। सो वट एवर, सो हमने वो वाला एरिया तो अभी तक किया नहीं कि हम तो रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं चेक किए। सो व्हाट वी नीड टू डू, अभी हमने सिर्फ मार्च का देखा है कि ये पे टाइमली पे कर दिया, टाइमली पे कर दिया, लेकिन हमें ऐसा हर महीने का देखना है। सो हर महीने के देखने के लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे, और वो शेड्यूल कैसे बनाएंगे, वो शेड्यूल ऐसा होगा, आइदर ट्राई, मतलब जनरली अच्छे क्लाइंट्स होते हैं तो वो शेड्यूल बना के दे देते हैं, इफ नॉट नथिंग, नॉट अ बिग डील, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा शेड्यूल बनेगा, ऐसा शेड्यूल बनेगा। देखिए, हर लेजर का एक ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस शीट आइटम का एक ओपनिंग बैलेंस होगा स्टैट्यूटरी ड्यूज का, राइट। तो जैसे कि ये सपोजिटली मार्च 20 का था, तो मार्च 20 में 90,000 रुपीज वाज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में जाके हम ये 90,000 रुपीज पे कर देंगे। 90,000 रुपीज वी विल पे, कितना तारीख को पे करते हैं, अप्रैल का तो हम लोग 30 अप्रैल तक पे कर सकते हैं, तो मे भी हम लोग 30 अप्रैल को पे किए, ठीक है। और उस महीने, अप्रैल के महीने में हम लोग बहुत जन का टीडीएस काटे होंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू पार्टी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू पार्टी, ऐसे करके एंट्री पड़ रहा होगा बहुत सारा, और वो सारा अप्रैल महीना में 1 लाख का पड़ा। अब ये 1 लाख का पैसा मैं क्या अप्रैल महीना में ही पे कर दूंगा? नहीं, मैं उसको कितना कब पे करूंगा, फिर मई महीना में पे करूंगा, मई महीना में। एंड और मई महीना में हम फिर उसको कितना तारीख तक पे करेंगे, 7 तारीख तक, जैसे उसी तरह फिर से मई महीना में 1,10,000 रुपया लाइबिलिटी पोस्ट हुआ, उसको मैंने कब तक पे किया, 1 लाख, उसको मैंने नेक्स्ट मंथ का 7th तक पे किया। इसी तरह अगर हम फेब में देखें तो फेब में 2 लाख का पोस्टिंग हुआ, और जिसको मैंने नेक्स्ट मंथ के 2 लाख, नेक्स्ट मंथ में 2 लाख रुपया पे कर दिया, ठीक है। एंड बाई 7th ऑफ द मंथ, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ टेबल विच यू शुड मेक। अपना वर्किंग पेपर में आपको ऐसा, अगर आपको क्लाइंट बना के देता है तो अच्छा है, आप बनाइए। तो आप लाइबिलिटीज को ऐसे पोस्ट करिए, सारा कितना लाइबिलिटी पर मंथ का आ रहा है, और वो लाइबिलिटी नेक्स्ट महीना पे हो जा रहा है या नहीं। इसका बेनिफिट क्या है, एवरी मंथ लाइबिलिटी आई कैन सी, and every month liability I can see from the ledger, I've extracted from the ledger, and I'm seeing that in the next month I'm checking all each and every challans, and I'm seeing whether the same is getting deposited within the due date. Okay, that is one of the role of the auditor. यही करना पड़ता है ऑडिटर्स को, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो उसने पेमेंट एज पर चलान ये सारा लिख दिया, और मार्च का लाइबिलिटी ऑब्वियसली मार्च में तो पे नहीं होगा, वो अप्रैल में पे होगा, तो वो अप्रैल, मतलब वो अप्रैल में आपने डॉक्यूमेंटेशन में वो भी रख लिया, ठीक है। एंड और इसके अलावा जस्ट रिमेंबर कि मैंने यहाँ पर पेमेंट एज पर बुक्स क्यों लिखा, कि ऑब्वियसली पेमेंट अगर चलान में इतना पे कर रहा है तो बैंक अकाउंट से उतना ही पैसा निकला होगा, और लेजर में भी वही एंट्री पड़ना चाहिए। बट बहुत बार क्या होता है ना कि कंपनी क्या करता है कि कोई भी एंट्री मारने वाला 94C में सपोजली 90,000 पे किया है, चलान वलान में भी 94C ही देखा है, लेकिन बुक्स में जब एंट्री मारने गया ना तो 194J का लेजर में मार दिया, 194J। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो अभी दिमाग भी नहीं लगा रहा, उसको पता ही नहीं कि ऑडिटर कैसे ऑडिट करता है, उसको लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगा। तो वो 194 लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया 194J के लेजर में, उसका बीआरएस तो मैच कर रहा है, उसको तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। इसीलिए लेजर से आप पेमेंट एज पर बुक्स का भी फिगर्स बैठा दीजिए, और लाइबिलिटी का भी फिगर्स, हर महीने का कितना लाइबिलिटी आता है वो भी बैठा दीजिए। और इससे देखिए आपको ये भी पता चल जाता है कि किसी महीना में शॉर्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं। सपोजिटली यहाँ पर अप्रैल महीना में 1 लाख रुपए का लाइबिलिटी था, उसने कितना नेक्स्ट महीना पे किया, 1 लाख रुपीज ही पे किया। सपोजिटली अगर वो 1 लाख रुपीज नहीं पे करके वो 80,000 रुपीज पे करता, तो उसका 20,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। अब वो नेक्स्ट मंथ में मे बी वो 20,000 को, सपोजिटली ये जो लाइबिलिटी था 1,10,000, तो ये 1,10,000 प्लस वो 20,000 जो शॉर्टफॉल है वो भी आ जाता, तो 1,30,000 हो जाता। तो 1,30,000 को सपोजिटली वो जून महीना में 1,30,000 पे कर देता, तब तो उसको क्लोजिंग बैलेंस तो पूरा मैच हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। बट वो जो 20,000 शॉर्ट पेमेंट किया, उसमें आपका एक ऑब्जर्वेशन निकल जाता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट तो किया, जिसको आपने नेक्स्ट महीना आपने करेक्ट कर दिया, बट आपने उसका इंटरेस्ट तो है वो तो नहीं दिया। सो ट्राई टू मेक अ टेबल लाइक दिस। नाउ हाउ यू विल मेक दिस टेबल, आई विल टीच यू दैट आल्सो। लेजर है, ठीक है, अगर अगर बहुत सारे कंपनीज में लेजर में डेबिट आता है, क्रेडिट आता है, अलग अलग टेबल्स में आता है, मतलब यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्टेड होगा, तो माइनस फिगर्स, मतलब ऐसा माइनस प्लस नहीं होगा, डेबिट का फिगर डेबिट में होगा, क्रेडिट का फिगर क्रेडिट में होगा, ठीक है। अब जैसे कि पोस्टिंग डेट के बगल में ना एक मंथ का फॉर्मूला लगा दो, ऐसे करके मंथ,
ठीक है, ऐसे करके मंथ, जस्ट आई एम ट्राइंग, अभी कर रहा नहीं हूँ, ठीक है, मंथ का फॉर्म लगा के ड्रैग कर दो, देन यू हैव दिस डेबिट एंड यू हैव दिस क्रेडिट। अगर आप एसएपी का तरह है तो आप माइनस फिगर सारा चूज कर लो, ठीक है, आपने मंथ लगा दिया, उसके बाद पीवट लगाओ, पीवट में मंथ डालो और जो माइनस फिगर्स का फिगर डाल दो, ऑटोमेटिकली 4 अगर आया तो मतलब अप्रैल में इतना माइनस फिगर आ रहा है, 5 अगर आया तो इतना माइनस फिगर किया। सेम चीज करो कि इसमें पॉजिटिव फिगर्स को सिलेक्ट करके एक अलग शीट में लेके जाओ, और उसमें तो एक ही एंट्री होगा क्योंकि पेमेंट का तो एक ही एंट्री है, तो 4 5 6 7 8 9 10 का आ जाएगा। याद रखना, अगर पॉजिटिव फिगर 4 अप्रैल में अगर दिख रहा है 2 लाख रुपीज, मतलब कि वो मार्च का पेमेंट हुआ है। उसी तरह अगर 5 अगर दिख रहा है 1 लाख रुपीज, तो इसका मतलब है कि वो अप्रैल का पेमेंट मई में हुआ है, ठीक है। सो दैट यू नीड टू बी ये, तो फिगर्स को ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो जो मेरा लाइबिलिटीज एक महीना ऊपर है वो नेक्स्ट मंथ पेमेंट हो रहा है, कि मेरा 90,000 लाइबिलिटी ऊपर में है, सो वो अप्रैल में 90,000 पे कर रहा है। उसी तरह 1 लाख लाइबिलिटी अप्रैल में है, तो आप जब तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीडीएस स्टैट्यूटरी ड्यूज को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट बेसिकली टीडीएस, ठीक है। सो यू कैन मेक वर्किंग लाइक दिस, और इससे आपको समझ में आ गया कि आपको कंट्रोल कैसे होगा, और आपको इंटरेस्ट भी आपका पकड़ में आ जाएगा अगर कुछ गलती हुआ है तो। नाउ कमिंग टू द पीएफ पार्ट, ठीक है, तो पीएफ में भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा पीएफ में एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एक डीएलआई चार्जेस होता है, एक एडमिन चार्जेस होता है, ठीक है। एक एडमिन चार्जेस एक डीएलआई का अलग होता है, और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अलग होता है, मतलब पीएफ का अलग होता है, पीएफ एंड पेंशन का अलग होता है, ठीक है। सो सपोजिटली यहाँ पर मार्च में मेरा है लाइबिलिटी, अभी आप देख रहे हो 8,02,000, तो आप जैसे ट्रायल में जाओगे तो ट्रायल में भी इतना ही दिखेगा, एम्प्लॉय पीएफ पेबल, एम्प्लॉयर पीएफ पेबल, डीएलआई एडमिन। बहुत बार कंपनीज में कंबाइन करके भी जीएल रख सकते हैं, ठीक है, मैंने बस सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग करके बनाया। तो 8,02,000, दिस इज मैचिंग विद द शेड्यूल विच आई हैव प्रिपेयर्ड, 8,02,000 आ रहा है, ठीक है। सो ये 8,02,000 को पीएफ का चालान कुछ इस तरीके का निकलता है, आई एम जस्ट शोइंग यू सैंपल, ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर, दिस इज अ चालान कम रिटर्न, ठीक है, इसके बैकएंड में पूरा एम्प्लॉय वाइज डिटेल निकलता है, ठीक है। एंड हियर इज द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखिएगा यहाँ पर एक अकाउंट 01 होता है, एक अकाउंट 10 होता है, एक अकाउंट 21 होता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज दिस यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, दिस इज प्रोविडेंट फंड। और अकाउंट 10 होता है, जहां तक मुझे याद है, दिस इज पेंशन फंड। बिकॉज एम्प्लॉयर का जो होता है 12%, इट हैज टू ब्रेकअप्स, वन गोज 8.33% गोज टू, अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और लिख रहा नहीं हूँ बिकॉज इट विल मेक द वीडियो लेंथ लॉन्ग। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% होता है। तो सपोजिटली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का बेसिक है अगर सपोजिटली 20,000, तो 12% बिकम्स 2,400, ठीक है। अब 2,400 जो है, सो इट विल एंटायरली नॉट गो टू प्रोविडेंट फंड। जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पूरा पीएफ पे जाता है, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% जाता है आपका पेंशन में, और 3.67 जाता है आपका प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। बट 8.33% में कैच है, 8.33% में मैक्सिमम 1,250 रुपया ही जा सकता है, ठीक है। सो उसमें तो अगर आपका 8.33%, जैसे मेरे केस में अगर 20,000 का मैं जस्ट 20,000 का 8.33% मैं करूं, सो इट विल कम टू 1666। तो 166 जो अमाउंट है वो मेरा उधर चला जाएगा, प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दैट। उसी तरह एक दिस इज बेसिकली दैट, ये डीएलआई चार्जेस है जो अकाउंट 21 दिख रहा है, और ये होता है एडमिन चार्जेस, शायद वो डीएलआई का होगा एक, और एक होगा प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड का होता है, ठीक है, एडमिन चार्जेस। सो दिस इज ये होता है। तो मैंने अभी यहाँ 4 ही देखा है बेसिकली, दिस आर द 4। और इसको भी सेम, अच्छा ये है चालान, ओके, दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ पेमेंट, बिकॉज ये है कि आपने अपलोड किया, डेटा वेटा डाल के चालान किया है। पेमेंट का कुछ रिसिप्ट इस पेमेंट का रिसिप्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, अकाउंट 1 अकाउंट 2 ऐसे करके आ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कोड वोड आएगा, और यहाँ पर अमाउंट दिखेगा, कौन सा मंथ का पेमेंट है वो भी दिखेगा, ओके। सो द प्रैक्टिस इज सेम। आप वैसे ही लेजर को आप क्लोजिंग मंथ का तो देख ही लोगे, अब हर महीने का ऐसे करके एक टेबल बना के हर महीने का लाइबिलिटी इस जीएल में कितना आ रहा है, पेबल जीएल में कितना आ रहा है, और आप उसको पेमेंट चालान्स के साथ मैच करा सकते हो, एंड यू कैन पुट द पेमेंट डेट्स
कितने जो एज पर द स्टैट्यूटरी नॉर्म्स जो डेट होता है उस डेट में। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं बोल रहा था, मैंने इसको इतना ब्रेकअप में क्यों किया। अगर आपका अब अभी आप देखो, आपको पता होगा, इफ यू डोंट नो, एक सैलरी एंड वेजेस का जो एंट्री होता है ना, तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब करता है तो सैलरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन और टू बैंक सपोजिटली, मतलब टू पार्टी होता है फिर बैंक हो जाता है, टू एम्प्लॉय हो जाता है टू बैंक हो जाता है, ठीक है, ऐसा होगा एंट्री। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डायरेक्टली हिट पीएल में पड़ता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक हो जाता है, ठीक है। उसी तरह एडमिन चार्जेस का एंट्री पीएल में पड़ता है, एडमिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसी मतलब टू बैंक नहीं होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेएबल हो जाएगा, पेएबल अकाउंट में पहले जाएगा, पेएबल एम्प्लॉयर पेएबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद वो एम्प्लॉयर पेएबल अकाउंट टू बैंक, उसी तरह एडमिन तो एडमिन टू एडमिन टू एडमिन पेएबल टू बैंक, उसी तरह डीएलआई तो डीएलआई चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक पीएल में जाएगा एक बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो आप समझ रहे हो कि जितना मैंने इस साल का लाइबिलिटी अक्रू किया है, यही इतना ही अमाउंट जो डीएलआई चार्जेस में अक्रू किया है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जो अक्रू किया है, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी का जो लेग है जो अक्रू किया है, उतना ही लेग एक तो क्रॉस पीएल में जाएगा। मतलब कि अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा अगर साल में 20,50,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ है पेबल जीएल में, तो उतना ही लाइबिलिटी मेरा पीएल में भी 20,50,000 का एक एंट्री पड़ा होगा हर महीने, कभी 1 लाख पड़ा, कभी 1,10,000 पड़ा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेबल अकाउंट। उसी तरह डीएलआई चार्जेस में भी सेम, डीएलआई चार्जेस अकाउंट डेबिट टू डीएलआई चार्जेस पेबल अकाउंट। सो देयर विल, तो आप इससे ट्रायल में दो जीएल्स का कंफर्ट ले सकते हैं। आप एक बैलेंस शीट जीएल का कंफर्ट ले सकते हैं जो कि अदर करंट लाइबिलिटीज में जा रहा है, आप एक एक्सपेंस जीएल का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जो आता है वो जीएल का भी कन्वर्ट कर कंफर्ट ले सकते हैं। दिस वाज द मेजर लर्निंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू। मे बी पहले वाला सारा चीज आपको पता हो, बट दिस वाज एन अमेजिंग थिंग। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्रॉस कैसे मिलाया जाए, दिस इज क्रॉस मिलाना, कि एक चीज आप दिमाग लगाओ कि एक चीज जो पीएल में भी आपने उसको पीएल का पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने चेक कर लिया, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लिया, तो वही मैंने यहाँ पर किया। तो मैंने सिर्फ ये बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस ही सिर्फ नहीं चेक किया, मैंने बैलेंस शीट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी जो सैलरी वेजेस तो छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन, डीएलआई चार्जेस, एडमिन चार्जेस, ये सारा का भी जो फिगर जितना लाइबिलिटी इस साल अक्रू किया है, जितना लाइबिलिटी हमने डिडक्ट किया है, वो सारा का अगर टोटल है तो उसका भी बैलेंस शीट आइटम को भी मैंने चेक कर लिया। तो मेरा दो जीएल में एक साथ कंट्रोल हो गया, एक पीएल का भी जीएल में कंट्रोल हो गया, बैलेंस शीट में भी। इसी तरह रेंट का भी जीएल में हो सकता है, एक एग्जांपल, क्योंकि रेंट अगर सपोजली 1 लाख करके और आप हर महीने के 5 तारीख के बाद पेमेंट कर देते हैं, तो आपका जो बैलेंस शीट में जो रेंट पेबल अकाउंट होगा उसमें तो 1 लाख रुपया ही दिखेगा, लेकिन आपका रेंट एक्सपेंस अकाउंट में 12 लाख रुपया दिखेगा। तो आपने रेंट पे अगर आप रेंट का चेकिंग कर रहे हैं तो आपने रेंट पेबल अकाउंट भी मैच करा लिया और आपने रेंट एक्सपेंस अकाउंट भी मैच करा लिया। आई होप इफ यू लाइक्ड what I said just now, do give a thumbs up. Just right now I'm exhausted totally by saying this. Okay, anyways, अब the same logic goes to GST RCM ledger also. GST RCM ledger में क्या होगा, चाहे तो इनपुट ले सकते चाहे तो इनपुट नहीं ले सकते। एंट्री क्या होगा, इनपुट अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट इनपुट GST RCM अकाउंट डेबिट टू GST RCM पेबल अकाउंट। और सिमिलरली आप लाइबिलिटी को प्लॉट कर लीजिए लेजर से, और जितना पेमेंट हो रहा है, क्योंकि आरसीएम का पेमेंट तो कैश में करना पड़ेगा, तो उसको आप प्लॉट कर लीजिए। So RCM will be similar and same if comes to GST also. GST का आउटपुट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आपने आउटपुट GST पेबल लेजर से लाइबिलिटी आपने प्लॉट कर लिया, सिंपल सा। जैसे कि मेरा मार्च का क्लोजिंग लाइबिलिटी है 5 लाख रुपीज, उसी तरह मेरा कुछ इनपुट जीएल होगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट, उधर 1,80,000 है सपोजिटली, तो मेरा नेट का लाइबिलिटी कितना है, 3,20,000। सो हाउ मच आई विल पे टू द गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 3,20,000। तो वो 3,20,000 मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, जहां से भी मैं ट्रेस कर सकता हूं वो सब देख लिया। ओके, सो जीएसटी के केस में भी सेम, लाइबिलिटीज को प्लॉट करिए, इनपुट्स के साथ एडजस्ट हो रहा है नेट लाइबिलिटी एंड यू पे। आप लोग बहुत ज्यादा जीएसटी में कॉम्प्लिकेट कर देते हो, आई नो यू डू अ लॉट ऑफ रिकंसिलेशन, जीएसटी 2A, ये सब के ऊपर भी मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, बट दिस इज अ सिंपल अप्रोच हो कि आप लाइबिलिटीज को देखो। अब आप इसको जीएसटीआर 3B से मैच करा सकते हो, ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करना चाहिए आपका। अगर इधर पर 5 लाख दिख रहा है तो आपका जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट कर रहा है, जो कि टैक्सेबल वैल्यू और सेल्स दिखाता है, वहां पर भी यही दिखना चाहिए। सिमिलरली सेम इनपुट
अगर आप अब इनपुट को आप मैच करा सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी उतना इनपुट दिख रहा है कि नहीं, एंड उसके साथ आप जीएसटीआर 2A जो कि पार्टी फाइल कर रहे हो उतना पार्टी फाइल किया है कि नहीं। अगर आप दिखा रहे हो कि 1,80,000 आपका आपके बुक्स में इनपुट है, तो वही फिगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी दिखना चाहिए कि हाँ 1,80,000 आपने क्लेम किया, और पार्टी ने भी 1,80,000 दिखाना चाहिए। बट पार्टी बहुत बार होता है नहीं दिखा सकता, पार्टी ने मे भी 1,50,000 दिखाया हो, क्योंकि कुछ कुछ पार्टीज क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो लोग बाद में दिखाएंगे। दैट इज हाउ द अप्रोच इज। ओके, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द अप्रोच। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बस मैं ये बोल रहा था कि एक समरी भी आप बना सकते हैं ऐसा अपने वर्किंग्स में, कि ओपनिंग बैलेंस जैसे टीडीएस का 90,000 था, लाइबिलिटी मैंने 18,60,000 ऐड हुआ, और पेमेंट मैंने जैसे मार्च 20 से फरवरी 21 तक पेमेंट किया, क्योंकि मार्च 21 का पेमेंट मैं अप्रैल 21 में करूंगा, तो मेरा लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000 है, एंड इट इज मैचिंग विद द ट्रायल। दिस इज इन अ समरी और रिको। ठीक है, रेंट के केस में ये हेल्प करता है, क्योंकि एड जितना भी लाइबिलिटीज होता है वही चीज क्रॉस जाके रेंट एक्सपेंस के साथ मैच कर जाता है। सो दिस वाज द मेजर थिंग फ्रॉम माय साइड। ओके, आई होप आई वाज एबल टू मेक यू। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू राइट द चेकिंग नोट्स, कि आपने पेमेंट चालान देखा, आपने रिटर्न देखा, आपने लेजर देखा, और भी आपने जो जो चीज आपने बैंक स्टेटमेंट से भी देखा, आपने सिर्फ चालान देख के छोड़ नहीं दिया, आपने बैंक स्टेटमेंट में भी देखा कि उस तारीख को उतना अमाउंट बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ था। तो एंड like this, if you write checking notes, it helps the other person also। और ऐसे ही करके आप ये फेस को रखकर इसके पीछे ये सारा जो शेड्यूल्स है जिसमें आपने सारा वर्किंग किया है उसको एज अ सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बैकअप लगा के, प्लस चालान वालांस जो भी आपने देखा उसको भी आप पीछे में लगा सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आप सॉफ्ट में रख रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन। सो दिस वाज द मेजर थिंग फ्रॉम माय साइड। आई होप you enjoyed the content. As I have always told you, in acha, by the way, you can reach us as auditpractically@gmail.com. The link will be given in the description box. Okay, and keep loving us. Okay, and as I've always told you, do not like to write a lot of words for us. Just a hashtag think like an auditor or a hashtag audit practically will help. Okay, I hope you enjoyed the video. Please do like, share, subscribe the channel. Thanks for watching, and we will meet soon again. Okay.